All right, so let's begin. Recording only? Start. Okay. So Aditya and everyone else, I think you all have received the project now, right? Okay, today's session we are going to learn the relevance of visualization, comparison of visualization, tips for effective visualization, and what is Tableau. Okay, so before I jump into this, right, let me show you something. Have you ever thought of building a dashboard on Alphabet और नेम पे आज तक कोई एनालिसिस देखा था? Let me just show you something. So there are few curated dashboard which I have picked up from web. And you will see that someone has developed a dashboard based on the name, right? So for example, let's say John. So do you see this dashboard shows you that John was a very popular name in 1880s, but his popularity is showing you in decline mode, right? So there was a Lady Diana, right? So that name was very popular in 50s and 60s. So yes, this baby wizard has been picked up from the name which were registered in the hospitals, right? And they have developed this dashboard, and this dashboard was last updated by 2019. Now see top names by decade, trends by letter, and more with. So if you remove this, you can see. Okay. Now if you are selecting a name alphabet A, which is the most popular name? Alia. Rank 45th. 50 Aaron. Alexander. Amir. Angel. Ava. So in 2018, the third ranked name is Ava. So that is the most used name, right? Hello. So you can see a particular name, how it is. So someone has developed this, right, on the इस वाले डैशबोर्ड को बनाने का लिंक सेंड कर सकते हो सर बेसिकली नाउ टू गिव अ सर्च ऑप्शन बाय नेम. हाँ, आई विल शेयर दिस पीपीटी, राइट? तो आपको नेम सब मिल जाएगा. बोथ आर प्लेस ऑन द सेम. नक्शा भी शेयर कर देता हूँ. लोग wait. Okay. So this is again the origin of species, right? Someone has tried to develop with the help of data, and if you see the
color which is given in the bottom, which is first edition, second edition, third edition. So what is this? Both are placed on the same stigma. I ascertain this by fertilizing several flowers first, and then 24. So they have, some scientific study they have tried to capture with the help of dashboard. Yes, the origin is the data point, right? कि origin के हिसाब से किस तरह से इसको प्रेजेंट किया, बट मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना जो कलर का कॉम्बिनेशन देख रहे हो, that represent the diversity of the data. इतने डाइवर्स डेटा को भी someone tried to use into their scientific research as a dashboard. If you want to see it, you can see it from this link. Now, this particular dashboard will help you how this world has changed over the year. So this is a net 2009 dashboard which Netflix used 11 years back. So this dashboard, right, which comprises all 50 states and the ranking of the movie in that particular state. So for example, they were into rental business. So before coming into this streaming business, they were into rental business. Now, if they need to procure a n number of those cassettes or those videotapes, how they get to know? So with this beautiful visualization, they can see in which area, within which zip code, what is the trend. So if you click on particular region, okay, that link is not working, I think. So if you click on that particular dashboard, right, on particular zip code, for example, I click on this area, it will show me most rented in this particular zip code. So this is zip code 07508. तो सबसे ज्यादा क्या चल रही है? The Curious Case of Benjamin, the Slumdog Millionaire, then Paul Blart. And this is how I can, order or I can manage my inventory with the help of only visualization. Another beautiful graph, and one of my favorite. Why I'm saying favorite? Because a very small graph, right? Only 2 lines, but contains a wealth of information. Let me open this particular graph on the internet. Link शायद में. So this contains, the jobless rate of people between 2007 and between 2009. So that recession period, याद है? जो recession आया 2008 के आसपास. This is the jobless rate of all men and women. कि यहाँ से 5% से चालू करके लगभग 8% तक ये रेट गया था. Now, how different type of people? Type means their origin, their education, their gender, their age group, how they are faring. So, for example, if I click over here, so these are men, age का 50 to 24 है, and they are all education level. अब उसमें सिर्फ आपको देखा हाई स्कूल ग्रेजुएट कितने अनएम्प्लॉयड थे? What is orange line? Okay, this is the selection line, origin line. जो भी उस समय उस पर्टिकुलर से ये जैसे क्लिक करोगे ना तो नीचे लिखा होता है एशियन अमेरिकन इंडियंस एंड पीपल ऑफ मोर देन
One race ages 25 to 44 without a high school degree. So many data points, right? Wealth of information just by one line. And if I remove all, let me. So this is my overall unemployment rate. Now I can compare it with people only for men. So do you see there is a small spike over here? It reached to 9.5%, which means people lost men are mostly unemployed as compared to women. As women's unemployment rate is just only 7.6%. Within women, if you want to see कि हिस्पैनिक लोगों का क्या सीन था, उनका 10.8, ब्लैक 11.7, white 6.2. women white कॉलेज ग्रेजुएट और कम, हाई स्कूल ग्रेजुएट थोड़ा ज्यादा, नॉट हाई स्कूल ग्रेजुएट. So now you can clearly vouch that people who are educated, at least college graduate, they are less unemployed as compared to the rest of the population. तो एजुकेशन का फायदा तो है, ग्राफ तो ये बोलता है. ठीक है. So what is data visualization? Now let me talk about what is data visualization. Please type your answer in the chat box. I know that few people are working on this, right? In this industry, they are using these tools as well. Graphically analyzing data, okay. Seeing the pattern data, how variables are related to each other, okay. चलो. Let me help you to understand this. Now you will how to reflect it in graphical presentable way. So I did some research, right, on this industry, data visualization. I prepared this PPT. दूसरी PPT दिख रही है ना? Introduction only. Okay. So let me explain what is data visualization. So पहली thing जो मेरे को समझ में आई, data is nothing new. What does that mean? कि ऐसा नहीं है कि डेटा पहली बार आया है, या ऐसा नहीं है कि इससे पहले डेटा नहीं हुआ करता. So when I written this line, data is nothing new. So data was there, data was always there, but what has changed over the year? So it is the amount of data, right,
this is the amount of data we as an individual is generating, organizations are generating, that has grown up exponentially, right? Now technology has made storage collection extremely easy. टेक्नोलॉजी ने क्या मदद की डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर? इसने स्टोरेज को आसान और सस्ता कर दिया. Now data in right hand can communicate a wealth of information. अगर आपको विजुअलाइजेशन समझना है तो ये लाइन समझ लो. डेटा इन राइट हैंड कैन कम्युनिकेट अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन. क्रिकेट मैच के अंदर राइट, अभी भी वो 6 ओवर फेंके जाते हैं, अभी भी वाइड बॉल को वाइड ही बोलते हैं, वाइड को, और नो बॉल को नो बॉल ही बोलते हैं. बट हैव यू सीन द चेंज इन द विजुअलाइजेशन व्हिच the Star Sports or ESPN is using versus we used to see in DD Sports? What was that? So now data is in the right hand. वो डेटा पहले भी उतना ही था, but someone with the knowledge of visualization is utilizing that data to give you so much insight, so much information, so much beautiful dashboard that you are more attached to the game now. You can, with the help of those graphs, you can compare yourself. पहले की तरह नहीं कि कमेंटेटर जो बोला वो मान लूंगा, right? Now you can see those comparison between runs per over, this over, comparison between two teams, comparison between 15 to 20 over. Compare when this particular person is bowling versus the batsman is doing performance. So they have given you so much granularity in the visualization that you yourself is now feel connected with the game, with not only as a layman, you yourself feel expert, and that's they want to portray. They want to, their objective is to make you more engaged by providing the information which will help you to remain engaged. वो ऐसा ही नहीं करते, right? So they have their commercial objective, which is that you feel more engaged. And how you will feel more engaged? When they will provide you more information. And what you will do with that more information? You feel yourself in feeling incited कि तुम्हें भाई ज्ञान की प्राप्ति हो गई. तो तुम भी बोल सकते हो 15 से 20 ओवर के बीच में हार्दिक पांड्या को 200 की स्क्वायर रन रेट से मारेगा. तो your इन्वॉल्वमेंट इंक्रीजेस. आपको मजा आने लगता है कि यार देखो मैंने बोला था सही हो गया. So data in the right hand can communicate a wealth of information. मतलब ये है कि अगर आपकी कंपनी के अंदर डेटा पड़ा हुआ है तो जरूरी नहीं है किसी ने कुछ बना दिया तो वो मतलब वही है. आप भी चेंज ला सकते हो, right? The best way to understand data is through visualization. Why? ऐसा क्यों? Think and answer. The best way to understand data is through visualization. ऐसा क्यों? More clear and gives more clarity about it. Okay. आदित्य, क्यों ऐसा क्यों बनाते हो ना डैशबोर्ड? क्यों? परमित,
कनिष्का, ओके, कनिष्का, कुछ तो दिमाग में आएगा था, बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड थ्रू विजुअलाइजेशन, ऐसा क्यों लिखा? So, okay, let me give you an example. Why there is a red, amber, and green light are there on traffic junctions और चौराहे जिसको हम बोलते हैं, लाइटें क्यों होती हैं? कभी सोचा है क्या वजह है? Yes, so yes, Navin, you are right. So human understand visual more easily than words. और जब आपको पढ़ाया जाता है ना बचपन में नर्सरी क्लास में, तो ए फॉर एप्पल, जो एप्पल की शेप दिखा कर आपको दिस इज ए फॉर एप्पल. Similarly, this is because when you see things, yes, you are able to understand more, and that's where data visualization plays a crucial role. So people who are doing their business day in, day out, if you give them a number, they will, get lost in the jungle of numbers. But when they see a picture, they will be able to take the right decision, will be able to take more inference from their own data. सो अगर आपने अभी एप्पल का ये सीरी आने लगा है, सो एक रिपोर्ट आती शायद आज आ गई होगी, नहीं, तो देयर इज अ रिपोर्ट बाय योर वीकली यूजेस रिपोर्ट. सो बिफोर दैट रिपोर्ट माय सोशल नेटवर्किंग यूजर्स वर वेरी हाई एंड आई डिडंट रियलाइज दिस, बट द डे आई सी दैट रिपोर्ट, इट इट गॉन फॉर इट ऑफ. मैंने बिल्कुल यूज करना ही बंद कर दिया, ये हालत है. आई नेवर रियलाइज कि मैं इतना यूज कर लेता हूँ, वो हर एक 2 मिनट में जो करते थे. So I have reduced 98% of my social media use because someone has shown me the picture. अगर कोई मेरे को ऐसे बोलता था, so my wife is, अरे आप घंटों बिताते हो उससे, I never paid attention to it because that number that doesn't click. But the day I see the graph, okay, productivity, your social media, this, right, this, what the hell is going on? Now the thing is changed, now because messages are very clear, loud and clear in picture. There is no if and but. They're simple comparison, right? So similarly, businesses, if you give them a number, they will start thinking about some other number. But the moment you put a picture, there is no answer to it. I think I have told you this before as well. That exploratory data analysis is detective work, right? Why detective work? Because it helps you to see some hidden patterns, right? Right. So if you want to be part of this data visualization industry, you need to work like a detective. When I say you need to work like a detective, so you should always have the curiosity to understand, to drill down your data, which will help you to see those hidden things which only a detective can see in a normal case. That's how you can create a differentiation. अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आज ही से सिर्फ हम ग्राफ और चार्ट बना रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, पहले भी होता था, लेकिन अभी क्या है, कुछ ये चीजें, एक टेक्नोलॉजी ने कुछ मदद की मेरी, कुछ डेटा का अमाउंट बढ़ा तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, राइट? नाउ हम लोगों को समझ में भी आने लगा कि इसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज किया विद द हेल्प ऑफ टूल लाइक टैबल्यू, पावर बीआई, क्विक व्यू, राइट? और
सबसे बड़ी बात, आज डेटा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उसको अगर आप समराइज करना चाहोगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो डेटा विजुअलाइजेशन क्या करता है, हेल्प पीपल सी एंड अंडरस्टैंड देयर डेटा, help people to see and understand their data, ये विजुअलाइजेशन। आपको 36 डेफिनेशन मिलेंगी, ऑल आर गुड, बट इन माय अंडरस्टैंडिंग दिस इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी डेटा विजुअलाइजेशन, कि लोगों को डेटा दिखाकर उनको मदद करना और उनको समझाना। बाकी इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है विजुअलाइजेशन का। I found this, इसलिए मैंने इसको स्लाइड में डाल के रखा। You can observe a lot just by watching. Why data visualization? क्यों चाहिए? क्योंकि सिर्फ देखने से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगती है। आपका वो चाहिए, दिमाग के तार काम करना चालू कर देते हैं, इधर कनेक्शन बिल्ड करना चालू कर देते हैं। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली पीपल ऑन द टॉप डेजिग्नेशन डू। वो क्या करते हैं, उससे पिक्चर ग्राफ से सिर्फ एनालाइज करते हैं, वही ऑब्जर्व करते हैं, उनका और काम क्या है, और उसी के हिसाब से दे प्रिपेयर देयर स्ट्रेटजीज। Have you shown you this slide before? No? Okay. Now another reason why data visualization. Okay? So in 1973, Mr. Francis and Com have demonstrated both the importance of graphing data before analyzing it and the effect of outlier and other influential observation of statistical properties. तो हम लोगों को ना बहुत आसान होता है कि भाई मीन मीडियन मोड निकाल के समझ लो डेटा कि भाई ये है। Now after this slide, after this class, your whole perspective will change about numbers. He described the article as being intended to counter the impression among statisticians that numerical calculation are exact but graphs are rough. यही है जनरल परसेप्शन लोगों का। नंबर दोगे तो समझ में आता है कि ये सही बात है, ग्राफ से तो ठीक है, कुछ हुआ है। So just look at the data. All x's, first three x value are same. In fourth quadrant, the value for x is same for all rows except one row. पहले 3x की वैल्यू सेम है और फोर्थ x के अंदर विद इन वैल्यू सेम है, एक वैल्यू सिर्फ एक्स्ट्रा है या आउटलायर है। y सारे अलग अलग है, ठीक है। नाउ मीन ऑफ x कितना है, इन सारे जो आपने 4x देखे थे उन चारों का एवरेज क्या है, 999 ही है, एग्जैक्ट 9 इन चारों का। 9999 एवरेज, ठीक है। सैंपल वेरिएंस ऑफ x कितना है, 11 एग्जैक्ट चारों केसेस के। मीन ऑफ y क्या है, 7.50, ठीक, चारों का। सैंपल वेरिएंस ऑफ y 4.125 चारों का। कोरिलेशन बिटवीन x एंड y 0.816, मतलब क्या, हाईली कोरिलेटेड। ये इंटरप्रिटेशन होगा, बहुत बढ़िया। लीनियर रिग्रेशन का मॉडल का फर्स्ट क्लास बनेगा, बना भी डाला हमने। y is equal to 3 plus 0.5x, और चारों का इक्वेशन एक बना, और चारों का ही कोफिशिएंट डिटरमिनेशन कितना है, 0.67, सही है।
डेटा समझ में आ गया, प्रॉपर्टी समझ में आ गई डेटा की। तो चारों का आउटपुट एक आएगा। अगर आप लीनियर रिग्रेशन की एल्गोरिथम लगाओगे चारों पे सेम आपको आंसर मिलेगा, है ना। कि कौन ड्रॉप कर गया, now look at this graph. All four sets are exactly same when you see the statistical summary. Do you still apply linear regression on all four? Do you get the same output on all four? So now onward, always remember, you cannot trust only numbers. And that's the reason I always say, don't trust number, see from the distribution. कि डेटा किस डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है। नंबर धोखा दे सकते हैं, पिक्चर धोखा नहीं देगी। Y4 पे अगर आपने मॉडल बना के दे दिया किसी को, क्या होगा, अगले डेटा पॉइंट में कवाड़ा हो जाएगा। यहाँ पे Y2 में पता ही नहीं कहा जाना है। Y3 नहीं, अगली वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, फिर वैल्यू यहाँ पहुंच गई, वैल्यू यहाँ पहुंच गई, उसका वैल्यू यहाँ पहुंच जाए एक्सिस। कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट 67 मतलब बढ़िया मॉडल बना है, थोड़े से इतना चलो सब मॉडल ये बढ़िया बना देते हैं चलो। There is only one graph where you can use this, which is this one. Right or wrong? I hope this will clear your one confusion for life, that numbers are always better than pictures. And this will also help you to understand why EDA is important before, making any solution. डेटा का EDA करना क्यों जरूरी है। पढ़ा तो बहुत था, EDA ये ग्राफ बार चार्ट बना, वो पर क्यों करना है, उसका आंसर ये रहा इस स्लाइड के अंदर। So again I am going back to help people see and understand their data. तो आपके केस में आपका डेटा क्या होगा, जिसपे आप एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे होगे, टू सी एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज योर डेटा सेइंग। और इस डेटा के बेसिस पे यू कैन टेक योर डिसीजन कि भाई इसमें बनाओ भी, बना लिया तो क्या आगे खतरा है मेरे लिए। And this is why if you take on my visualization, you need not to be a graphic designer. Honestly, you need not to be a graphic designer. You need not to be a PhD in statistics. What you require, you just need to be eager to learn and have to practice to get better. Now, the visualization is not only about data. खाली डेटा होगा तो अच्छा विजुअलाइजेशन बनेगा, खराब बनेगा, ऐसा नहीं है। It is how you present it
and design it that can help people to remember. और जो सारी कहानी हम थ्रू जैसे करते हैं वो यही है, द यूजर हु सी माय डैशबोर्ड और विजुअलाइजेशन, it should or he should or she should be able to retain that thing for longer period of time. And to make that possible, you need to approach visualization as a telling a story. क्या कोई कहानी सुना रहे हो, बिकॉज स्टोरियां ही लोगों को याद रहती हैं. Through visualization, you're creating a story for the people, for their business, which will help them to understand their own data, right? So I hope now you understand the importance of the data visualization, why we do data visualization, and how this help people to understand their data. ये चीजें क्लियर हो गई? Any question before I move on to the next slide? I know I am बहुत theoretical में पढ़ा रहा हूँ, but this is just to give you an overall perspective और overall context of this data visualization. Otherwise हम लोग क्या समझते हैं, data visualization मतलब दो ग्राफ बना दो, दो चार्ट बना दो, हो गया डेटा. टैबलू सीख लिया, डेटा विजुअलाइजेशन करना जानते हैं. और सीख लिया जी, मेरे को तो आता है. I have seen people who have done such a fantastic work in this industry, right? They have changed, they have brought, they have brought so many changes in this industry that is helping business to grow. तो थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ मैं. It was not new. 1786 में someone has created this bar and line graph. And this is the graph which has created, or what a foundation stone for this industry, right? Another beautiful graph. So this is the graph developed by Florence Nightingale. जानते हो Florence Nightingale? Anyone? Google मत करना. मैं मना नहीं करता, पहले बार बोलो Google मत करना, आपको पता होना चाहिए. She is the founder of Red Cross Society. So with this graph from, and the data is from between 1854 to 1855. So to उस time पे she has presented the death from wounds in battle versus death from other causes, death from disease. कि लोग बीमारियों से ज्यादा मरते हैं बजाय लड़ाई से, जबकि लोगों का परसेप्शन क्या था उस टाइम पे, लड़ाई से ज्यादा मरते हैं. अगर आपको भी आज भी अगर नहीं बताता, आपका भी इंप्रेशन था वर्ल्ड वॉर में तो बहुत लोग मर गए. बट द ट्रूथ इज in front of your eyes and beautifully depicted ki how it fares from Jan to January, Jan to December, sorry. और इन्होंने किस लिए यूज किया, ताकि she can propose कि जो डेथ होती है वो सैनिटरी कंडीशन की खराब होने की वजह से होती है, ना कि लड़ाई में गोली खाने की वजह से. Circular pie chart, William Playfair again. Yes, developed this pie chart. And when we use pie chart कब यूज करते हैं हम लोग,
अरे कोर्स खत्म होने वाला है, डेटा साइंटिस्ट बनने वाले और weighted analysis. Okay, so when you need to show some proportion or portion from the whole. The first geological map of England and Wales developed a standard for geological cartography. It is also known as the map that changed the world. William Smith 1769 और 1839 तब के जमाने का है. Another good use case of visualization. So this original map by John Snow showing the clusters of cholera cases in the London epidemic of 1854, drawn and lithographed by this guy. So he showed, उन्होंने क्या दिखाया? He showed that the Southwark and Vauxhall Waterworks Company was taking water from sewage polluted section of the Thames and delivering the water to home, leading to an increased incidences of cholera. Snow's study was a major event in the history of public health and geography. It is regarded as the founding event of the science of epidemiology. So when he, drawn this picture, जो आपके सामने स्क्रीन पे है, then you are able to see that people who are visiting his clinic are from this area only. तो इन्वेस्टिगेट किया कि भाई ऐसा क्या है इस एरिया में. Then he got to know कि ये तो पानी की वजह से जो कि थेम्स के एक पर्टिकुलर पोर्शन से लेकर के आते हैं. This is the one of the old use case of using of uses of data visualization. कि 90s के 1854 में किसी ने सोचा बड़ी बात. थिंक अबाउट दैट टाइम, कुछ भी नहीं हुआ करता था. The best graphic ever made. The French engineer Charles Mirandi illustrated graphically the disastrous campaign of Napoleon against Russia in 1812. The width of the course is proportional to the number of surviving soldiers in the war campaign. In beige for the way, in black for the return. तो जब लोग अटैक करने गए थे नेपोलियन की आर्मी के काम मॉस्को, कितने लोग गए थे और कैसे कैसे गए थे, ये पूरी जर्नी है. और वापसी में कितने लोग आए, ये उस जर्नी का हिस्सा है. पूरी हिस्ट्री एक ग्राफ के अंदर, सारा वॉर का एनालिसिस एक ग्राफ के अंदर. ये तो हिस्ट्री से लिया होगा. बट I am surprised that someone can think of presenting a whole war in just one graph. एक नेपोलियन जैसे शख्स की पूरी जर्नी उसे एक ग्राफ के अंदर खत्म कर दी और उसका सारा किया धरा का पूरा पिक्चराइजेशन एक ग्राफ के अंदर. ये नेपोलियन को भी नहीं पता हुआ कि इतने लेके गया तो इतने लौट के आए. या ये विजुअलाइजेशन से उसको अपने नुकसान की वो अंदाजा नहीं हुआ. बट नाउ यू कैन मेक इट कि भाई क्या तबाही वाला काम किया था इसने. एनी क्वेश्चन ऑन दिस. सो ये ग्राफ की मोटाई बताते कितने लोग थे, कलर
तो आपको पता ही है बेंच एंड ब्लैक, तो बीच बीच में ये भी नहीं था, कुछ लोग यहाँ पे भी गए थे, कुछ लोग इस साइड गए थे, तो यहाँ से वापसी दिखा रहा है, ये यहाँ से वापसी दिखा रहा है ब्लैक वेज, और ये ओवरऑल वापसी है। वन 120 लोग वापस आए, ना के बराबर लोग वापस आए। तो that's the story. So let me just move on to the next slide. नाइनटीन 30 में लंदन का मैप बन गया था इस तरह से। 1965 bar and line issue for the analysis of frequencies, new proposal for visual comparison. 1965 people have started using these kind of pictures to present the data, average, American, English, Japanese. Okay, before I move on to the next one, इतनी शांति का मेरे को लगता है ब्रेक दे देना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? तो टेक अप 10 मिनट 15 मिनट ब्रेक एंड देन वी विल मीट एट 12:15। चलो, बहुत जोर से नींद आ रही है और सुस्ती वाला मेरे को भी इसको मैं देख के आ रही थी। सही का जो पोर्टल है एमआरटी का मतलब उसमें ओपनिंग्स वगैरह काफी आती है। नो आइडिया, मैं तो यूरोप के भरोसे मत रहो, अपना खुद से ट्राई करो। खुद से तो खुद से अप्लाई किया था ना, पर रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं। लगे रहोगे तो कहीं पहुंच जाओगे। सब बड़ी कंपनीज में तो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका 6 महीने के बाद आता है ना, जब तक अच्छी तरह नहीं आ जाता ना तो भी जगह देनी रहती है, जैसे एक्सेंचर वगैरह है। कुछ नहीं है, बस जिन्हें जरूरत होगी ना जैसे वैसे आ जाओ, जिन्हें जरूरत हो तो ऐसे निकाल लेंगे। सब है ना, चेक कर देते हैं एक बार तो फिर 6 महीने तक अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी सी है इसलिए अभी बड़ी कंपनीज में इसलिए अप्लाई करते हैं। उनके आगे तो मल्टीपल प्रोसेस होते हैं, सिस्टम में डिटेल डालते हैं सर, वो अच्छा नहीं देते हैं ना कि फिर वो एचआर को भी बोल देते हैं कि तुमसे पहले आएगी तो मैंने पहले चेक कर दिया। देखते हैं सर वर्किंग नहीं तो कुछ निकलो मत, मेरा कहने वाला रूम जरूरी थोड़ी ना कि बड़ी में छोटी में ना जाओ, सब करेंगे ट्राई, हम चलेगा नहीं। बस एक बार एंट्री होती है ना सर, बस कैसे ही मिल जाओ, फिर उसके बाद तो खुद से स्विच करते रहो, एक्सपीरियंस आता रहेगा। टप्पा लगवाओ। नहीं नहीं सर खाओ, अरे सुबह हैवी ब्रेकफास्ट करके आपको तो पूरा दिन सर 8 बजे तक बैठना है।
Sorry. All right, welcome back. So another beautiful graph, right? One of the most beautiful graph I have ever seen, but not on the beautiful subject. So this graph visualization nearly 95 million casualty of war from 20th century. Data made available by Polynational War Memorial make clear that war was near constant characteristic, allowing just 2 years of peace in the last century. सिर्फ पूरे century के अंदर 2 साल ही शांति से बीते हैं इस world के. Given the sheer magnitude of war's toll, the visualization only considered conflicts exceeding 10,000 death. मतलब 2, 4, 5, 7 हजार आदमियों की तो डेथ ना कंसिडर ही नहीं की है. In the static form, it is still not feasible to label every conflict. The overall composite reveals pattern in the timing, duration, involvement, and human toll over war. So let me just walk you through with this graph. It is taking some time to load.
So let me just explain. By the time it is loading, the color represent the region to which they belongs. So this dark red means Africa. This light red means, or blood red means Asia. Then Asia, Europe, North America, South America, global. Right now, so how this diagram is made? Poppy diagram. So start and end. तो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है. डायग्राम ये टाइमलाइन है, ये ड्यूरेशन है. ये साइज डिपेक्ट द नंबर ऑफ डेथ्स. अगर 0 से 99,000 है तो ये 100 to 498,000 ये फिर ये साइज. एंड नाउ द लॉन्गेस्ट string which is Israel versus Palestine. कब से चली और कहां तक चली? कहीं इंडिया बांग्लादेश बाहर, राइट. ये रही, यहीं की खत्म हो गई. एक ही साल चली थी, वहीं की वहीं खत्म. स्टूडेंट नहीं पे. ये कोई इंडिया पाकिस्तान होगी, ये भी यहाँ पे होगी. ये लेट मी ओपन इट इनटू अ इंटरेक्टिव. नहीं खुल रहा है ये इंटरेक्टिव भी ओपन हो जाता है, राइट. नेट कहाँ होता है? क्लिक दूंगा. So with the help of this, you can, do you see the amount of data which is used? 100 साल की कहानी एक ग्राफ के अंदर, right? अभी interactive otherwise you can click and you can see, right? जो छोटे छोटे जहाँ पे भी नाम नहीं आ रहे ना, उस पर आप होवर करोगे तो नाम भी डिफेक्ट होने लग जाते हैं. तो you can see, अब पीस जो वाली बात चल रही थी. So do you see only 2 years or in peace? ये देखो, यानी ये वर्ल्ड 1910 के बाद से लगातार हर साल कुछ ना कुछ लड़ाई चली रही है वर्ल्ड के अंदर. एंड 1900 से 210, 110 साल का डेटा एक ग्राफ के अंदर, पूरे वर्ल्ड का डेटा एक ग्राफ के अंदर. जस्ट थिंक अबाउट द इमेजिनेशन पावर ऑफ द डेवलपर. देखना आसान है, बट थिंक जब व्हेन ही हैज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड दिस थिंग, उसके दिमाग में क्या क्या नहीं आया होगा, मतलब कितने एफर्ट डालोगे. Now since we have seen this, we can use this somewhere in our world, not for this war purpose, maybe for the business purpose. So why I'm showing you this thing, right? ये क्यों बता रहा हूँ सर? सीखने तो टैबलू आए थे, ये क्या बताएं दिखाने लगे आप? क्वेश्चन तो आया होगा ना. मैं भी आपको ना सिर्फ एक बार चार्ट, पाई चार्ट बना करके टैबलू खत्म कर सकता था, बट यू विल नेवर नो द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन. एंड दैट्स वेयर आई वांट योर अटेंशन, जो कि मिसिंग होती है हर जगह पे. लोग टैबलू सीख के चले जाते हैं, पावर बेस सीख के चले जाते हैं, विजुअलाइजेशन को नहीं सीख पाता. और फिर क्या होते हैं कि बॉस बोलता है क्रिएटिविटी लाओ, बॉस बोलता है ये दो, कुछ नया करो, फिर दिमाग चलना बंद हो जाता है. Someone has plotted this. So better storytelling through visualization. So
someone has shown how Obama has won the White House race. यहाँ से कितना, 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 किसको कहां से वोटिंग मिल रही है. Another fantastic graph which G has removed from their website, क्योंकि website पे हुआ करता था. So what they have done, they have record 72 million records of different patients. On the basis of those 72 million records, they have created this graph. So ये graph किस तरह से? So you have this a circle. Now this, how the circle is associated with other diseases. तो हाइपरटेंशन के साथ साथ आपको क्या ब्लड प्रेशर, ये वो सबके साथ कनेक्शन होता है. मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस, इट विल शो यू 10 different diseases which could be a outcome of it, or because of that you are having this problem. So the doctor who is seeing this picture, he will get every information just by one click. And the strength will also be there. कितने चांसेस है इसके होने, तो वो लाइन की मोटाई भी उसी हिसाब से उन्होंने बनाई हुई थी. तो यू कैन क्लिक ऑन एंड यू कैन सी इट. ये भी हटा दिया उन्होंने साइट से, बट पता नहीं जो भी रीजन है, बट वन ऑफ द फाइनेस्ट ग्राफ आई हैव सीन. मतलब बिजनेस केस के हिसाब से अभी तक का सबसे बढ़िया ग्राफ जो मैंने यूज होते हुए देखा. राइट. और हर तरह की बीमारी का, हर तरह की दूसरी बीमारी का कोरिलेशन. And this is what the future is. यही है, not restricting visualization की भाई दो बार ग्राफ और दो चीजें दिखा करके, you are really making business sense. अपना प्रोडक्ट को किसी, अगर ये प्रोडक्ट में इसको कन्वर्ट कर दूं और किसी डॉक्टर को बेचूं, भाई तुम क्या पेशेंट से पूछते हो, क्लिक करो इस पर, देख लो क्या हाइपरटेंशन है, कौन कौन सी ब्रांचें खुल जाती है. तो डॉक्टर फिर उसे अपनी प्रैक्टिस करे. मेडिकल साइंस के अंदर जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए भी है कि भाई हाइपरटेंशन की गोली के साथ ये 4 का कॉम्बिनेशन में बनाना है. सो दैट इज द बिजनेस केस. इसका विजुअलाइजेशन सिंपल ग्राफ है. The future data visualization. So data is everywhere, right? And big data will imply more need for data visualization. क्यों? कि जितना बड़ा डेटा होता जाएगा उतना ही उसको एनालाइज और उसको इंटरप्रेट करना मुश्किल है. राइट. उसका स्टैटिस्टिक्स समरी भी कॉम्प्लेक्स ही निकल के आएगी. बट ग्राफ्स कैन हेल्प यू. अगर जैसे मैं लास्ट ग्राफ दिखाया था, सबके कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू दिखा देता, डॉक्टर क्या कर पाता? सिर्फ पकड़ के बैठा रहता वो भी अपना. राइट. बट नाउ यू हैव अ पिक्चर, साइज, कलर, एवरीथिंग इज वेल कोऑर्डिनेटेड और वेल डिजाइंड. तो वो सारे इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं कि रेड का मतलब क्या है, ग्रीन का मतलब क्या है, अगर लाइन इतनी मोटी है तो क्या मतलब है, डिस्टेंस का क्या मतलब है, ज्यादा डिस्टेंस है तो जी इसके चांसेस कम है. एवरीथिंग इज डिजाइन्ड इन सच अ मैनर. क्या वो क्या स्ट्रेटेजी समझने से पॉसिबल? द आंसर इज नो. Technology will drive visualization in future. Technology will definitely help us. Increasing democratization with the surge of new tools. Increasing democratization मतलब कि किसी की दादागिरी नहीं रहेगी. कोई किसी एक कंपनी का इस पे जोर नहीं रहेगा. किसी डेटा पे, क्योंकि आजकल जो डेटा की बात चल रही है कि डेटा इज एवरीवेयर, तो उस एवरीवेयर वाले डेटा यू कैन डू योर एनालिसिस. ट्विटर के ट्वीट्स डाउनलोड करके आप कर सकते हो ना आज के टाइम में एनालिसिस. राइट. तो दैट इज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डेटा. सिमिलरली open source software are giving you such a liberty, you can do your analysis, your visualization with the help of that. So अब किसी पर्टिकुलर कंपनी, किसी उसका इस पर कंट्रोल नहीं है.
not on data, not on tool. So world is open, और यही रीजन कि टैबलू ने अपना पब्लिक को ओपन सोर्स दे रखा है कि जो मर्जी यूज कर लो. Interactivity will become more widespread. Data will look at a wider time horizon. Interactivity means that people can click and play. They can see what they want to see. मेरे को एक महीने का देखना, एक हफ्ते का देखना, एक साल का देखना. I should have that interactivity. मेरे को X का Y के साथ रिलेशन देखना, Y का Z के साथ देखना. I have that interactivity. और धीमे धीमे टाइम जोन बढ़ता चला जाएगा because the tool will be faster, analysis will be faster. तो जो वाइडर टाइम होरिजन जो करना है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं पैटर्न को ज्यादा लंबे पीरियड तक देख सकूं. The message, the content and the story will still decide the impact. चाहे कोई भी टूल आ जाए, कैसा भी डेटा आ जाए, जो मैसेज आप देना चाहते हो, जो कंटेंट आपने डेवलप किया और जो स्टोरी आप कहना चाहते हो, वो ही होगा एट द एंड. कितना भी कलर पोत के ले आना, अगर स्टोरी नहीं है तो किसी काम का नहीं है. और अगर मैसेज को डिलीवर नहीं है तो यू लॉस्ट द एसेंस ऑफ डेवलपिंग अ डैशबोर्ड. और हम लोगों का फोकस करता है जब एज ए डेवलपर लोग जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर सुंदर करने का. सबको एक ही शौक होता है सुंदर कैसे बनाओ. सुंदर नहीं बनाना. यू शुड हैव ए मैसेज, कंटेंट एंड स्टोरी. दैट्स इट. And now to answer why we need data visualization, the ability to observe without evaluating is the highest form of intelligence. क्यों? Because even a layman can take a decision. एरो बने होते हैं ना, क्यों बने होते हैं? मैं क्यों लिख दिया आप अपने हाथ से दाहिनी ओर मुड़े. Why arrow? Because even a layman can understand that thing. So a May 2013 survey by Aberdeen Group found that managers in organizations that use visual data discovery tools are 28% more likely to find timely information than those who rely solely on managed reporting and dashboard. So एक होते मैनेज रिपोर्टिंग एंड डैशबोर्ड. तो एमआई का नाम सुना होगा आप लोगों ने. वो लोग क्या करते हैं, बहुत रिपोर्टिंग करते हैं, मेरे अभी बहुत होती है, बट उससे ना कोई इंफॉर्मेशन ड्राइव नहीं होती. ठीक है, उससे कोई इंफॉर्मेशन ड्राइव नहीं होती. इंफॉर्मेशन जहां आप इनसाइट देने की कोशिश करो विद द हेल्प ऑफ डेटा. वो मैनेज रिपोर्ट क्या, हाँ जी आपने ये किया था, ये हो गया जी, खत्म. जो मंथली रिपोर्ट जब समरी होती है, वीकली रिपोर्ट समरी होती है, उससे आप कुछ आगे का नहीं सोच सकते, कुछ इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं ले सकते. राइट, सिर्फ नंबर आप रिपोर्ट कर रहे होते हो. डेटा विजुअलाइजेशन ड्राइव्स द इनसाइट. इट ड्राइव्स व्हाट, इंटेलिजेंस. सो नाउ ये छोटी जो आपको ये पीपीटी दिख रही है, अगर if you understand it thoroughly, then you can understand the power of this tool, power of this thing. Otherwise तो सबके लिए ग्राफ ही है. So I still remember कि ऐसे ना मैंने कुछ मॉनिटरिंग बनाई थी किसी बिजनेस के लिए. 3 महीने से मैंने उनको डेटा भेजे जा रहा था, कोई रिस्पॉन्स नहीं. मतलब ठीक है कुछ आ रहा है. तो फिर एक दिन मैं अपने एक टीम में को बुला के मैंने बोला कि काम कर, इस पर ग्राफ बना. ठीक है, मैंने 3 महीने का डेटा उठा के, जो डेटा मैं उनको हर हफ्ते भेजता था, हर मंडे के मंडे भेजता हूँ, उसका 3 महीने का कंसोलिडेटेड डेटा करके मैंने ग्राफ बनवाया. और कुछ नहीं,
कोई मेरा तो पावर बीआई था, पर उस दिन मैंने एक्सेल में ही बना लिया, पावर बीआई टाइम लगता। मेरी मीटिंग थी मंडे की, राइट, सुबह हमने काम चालू किया, शाम तक हमने खत्म कर लिया। और मीटिंग जब स्टार्ट हुई तो वही मेरे से जैसे कि पूछा था, भाई कहाँ आज, व्हाट इज द एजेंडा? मैंने कहा एजेंडा तो ऐसा नथिंग, बट आई वांट टू शो यू सम ट्रेंड्स इन द डेटा व्हिच आई शेयर्ड विद यू। और जब डेटा जो सामने प्रेजेंट हुआ, जो ग्राफ जो प्रेजेंट हुए, ठीक है, एवरीवन वाज क्या, अच्छा ऐसे है यार, हमें तो पता ही नहीं था। मतलब जिन लोगों का डेटा ना उनको भेजे जाता है, ठीक है, हर हफ्ते, वो खुद बोल रहे हैं यार ये तो हमें पता ही नहीं था। तो भाई देख क्या रहे थे उसमें 3 महीने से? और उसके बाद स्ट्रेटेजीज बनी, उसका नतीजा ये, वो आज एक टीम बन गई, जो उन, जो मैं दिखा कि भाई ये अकाउंट से इस पर काम नहीं हो रहा, उस पर काम करने की टीम बन गई। सिंपल ग्राफ, कुछ नहीं था, 12 ग्राफ और 2-4 लाइन ग्राफ थे, उससे मैंने उसको ड्राइव किया। तो वही बोल रहा हूँ कि नंबर्स कितने भी फेंकते रहो, बट विजुअलाइजेशन हेल्प देम टू टेक, कम टू सम कंक्लूजन, यार ऐसा हो रहा है। नंबर में नहीं दिखता वो, बट वो लाइन ऐसे ऊपर नीचे दिखती है ना, तो दिखता है। अगर फॉर एग्जांपल लो, आपको बोलने लगे आपका बीपी 100 है, आपका बीपी 110 है, आपका बीपी 112 है, नहीं, द मोमेंट यू सी दैट लाइक 222 दिखाते पिक्चरों के अंदर, हार्ट रेट का जो लाइन दिखाते, क्यों? विजुअलाइजेशन है। आप कोई भी वो किसी को समझ, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नहीं, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। वही बिजनेस को दिखा दो कि नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कुछ तो है। और नंबर कोट करते हुए तो वो आते हैं, बंद हो जाते हैं, टाटा बाय बाय। So benefits of data visualization: by visualizing the data, one can absorb information in new and more constructive way. Visualize relationship and patterns between operation and business activities. Identify and act on emerging trend faster. मान लो टू टू करने वाली लाइन एकदम तेज चीजें बनने लग जाए, नीचे क्या करोगे? भाग के डॉक्टर के पास जाओगे ना, डॉक्टर साहब देखो, वही बिजनेस को दिखाना है, ट्रेंड। तो उसमें क्या जल्दी एक्शन होता है उस पर। जैसे मैंने आपने जो केस बताया, तुरंत एक्शन हो गया एक उसी मीटिंग के अंदर, भाई तुम ये करना, अमेरिका वालों, तुम इंडिया वालों तुम ये करना, ऑस्ट्रेलिया वालों तुम ये करना। तुरंत एक्शन, वहीं के वीपी ने बैठे बैठे सबको लगा दिया काम पे, और 3 महीने से कुछ नहीं हो रहा था उस पर। मैनिपुलेट एंड इंटरेक्ट डायरेक्टली विद डेटा, ठीक है। तो डेटा के साथ आप क्या कर सकते हो? मैनिपुलेट इज नॉट द राइट वर्ड, बट यूज होता है। सो मेरे को पसंद नहीं है, सॉरी, तो इसलिए थोड़ा, मैनिपुलेट कुछ नहीं करते भाई, हकीकत दिखाते हैं। एंड इंटरेक्ट डायरेक्टली विद डेटा, डेटा का डायरेक्टली बात करते हो ना, तो यू सी 10 डिफरेंट थिंग्स। फॉस्टर एंड न्यू बिजनेस लैंग्वेज, मतलब क्या हुआ कि एवरीवन इज टॉकिंग ऑन द सेम लाइन, सबको इक्वल हो जाए। क्योंकि हो सकता है टेक्निकल टर्म समझ में ना आए, हो सकता है न्यूमेरिक डेटा समझ में ना आए, बट पिक्चर के मैं देखे हर, हाँ कि भाई ट्रेंड नीचे जा रहा है, हमें ट्रेंड ऊपर जा रहा है। सो दो दिस लैंग्वेज वो स्ट्रॉन्ग करती है कि लोग एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं और सेम लाइन पे बात कर रहे हैं। So now you need to understand the key elements of data visualization. One is data. Action needs data. View, seeing is believing. Discovery, which is visual discoverable pattern. Story, trigger for action, and action, practical way to improve your business. तो अगर आपको अपने डेटा विजुअलाइजेशन की एलिमेंट्स पता है, डेटा क्यों चाहिए था, तभी कुछ एक्शन लोगे। व्यू क्यों चाहिए क्रिएट करना है, तो कि जो दिखेगा उससे भरोसा करोगे। डिस्कवरी मतलब क्या, कुछ पैटर्न दिखेगा, ट्रेंड दिखेगा,
तो ही तो आपके लिए कुछ मसाला बनेगा, राइट? स्टोरी विल फोर्स यू टू टेक सम एक्शन. अगर ऐसे लाइन प्लेन दिखती लगे तो स्टोरी ना बने, राइट? एंड एक्शन फिर वो जिसकी वजह से आप बिजनेस में इंपैक्ट करोगे, राइट? टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन, साइंटिफिक like structural, data, seismic, medical. इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन, नो इनहेरेंट स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं है इसका. न्यूज एक विजुअलाइजेशन हो सकती है, इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन. स्टॉक मार्केट आपका इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन हो सकता है. फेसबुक कनेक्शन जो दिखते हैं वो भी एक तरह का हुआ है. एक होता है विजुअल एनालिटिक्स. विजुअल एनालिटिक्स इज द साइंस ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग फैसिलिटेटेड बाय इंटरैक्टिव विजुअल इंटरफेस. जो पहले तो है वो सिंपल ग्राफ या वैसे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग होगी. लाइक साइंटिफिक कुछ इस तरह से होते हैं, इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से. इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन का एग्जांपल दिखाता हूँ आपको जो हम सब यूज करते हैं, गूगल मैप. एंड यू ऑल टेक एन डिसीजन. विजुअलाइजेशन है ये, दुनिया बदल के रखती है विजुअलाइजेशन ने. योर एंटायर लाइफस्टाइल हैज चेंज्ड बिकॉज़ ऑफ दिस विजुअलाइजेशन. नाउ आई टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ गूगल मैप कि भाई ये रोड पकड़ने की, वो रोड पकड़नी है. नाउ आई एम फीलिंग मोर इन्फॉर्म्ड. पहले क्या होता था, जाम होता था तब जाकर होता था कि फंस गए, राइट? पहले रुक रुक के पूछना पड़ता था. नाउ आई सी फ्रॉम होम कि आज मेरे को डीएनडी पकड़ना है, आज मेरे एनएच24 से जाना ही नहीं है. सुबह देखा डिसीजन. और यही है डेटा विजुअलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव. क्या है विजुअलाइजेशन का? टू हेल्प यू टेक डिसीजंस, अ बेटर डिसीजन. दिस इज योर विजुअल एनालिटिक्स. So, as mentioned, this is not easy to define due to multidisciplinary nature, involves multiple processes and wide variety of application area. So, जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, मैंने रिसर्च किया उसके बाद में याद बोल रहा हूँ. कहीं इसकी डेफिनेशन कुछ मिली नहीं मिली, देन आई एम सेइंग कि नहीं, इसको कोई अच्छे से डिफाइन कर ही नहीं सकते हो आप. इतना वैरायटी से यूज है, कौन कहाँ पे यूज कर रहा, किसी को इसकी लाइन तो ब्रेथ नहीं पता, राइट? एंड अर्ली कुछ लोगों ने कोशिश भी की थी. द साइंस ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग फैसिलिटेटेड बाय इंटरैक्टिव ह्यूमन मशीन इंटरफेस. ठीक है, बट बेस्ड ऑन करंट प्रैक्टिस व्हाट आई हैव डिफाइंड, विजुअल एनालिटिक्स combines automated analysis techniques with interactive visualization for effective understanding, reasoning and decision making on the basis of very large and complex data set. ये है विजुअल एनालिटिक्स. और यही है टैबल्यू, पावर बीआई, सैसविया, क्लिकव्यू, सब विजुअल एनालिटिक्स के अंदर घुस रहे हैं. सिंपल ग्राफ देख के बताओ क्या समझ में आता है? फॉर द कॉमन मैन लिखा मैंने वो, हरिकेन का है. व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? Yes, and what else? Yes, so you see the direction and the strength. तो किसी को भी समझा कि भाई बहुत खतरनाक रूप से बढ़ रहा है, ये क्यूबा के साइड से निकल जाएगा,
originated from the currency. Very good. Impact of visualization. Developed to map user reported violence in Kenya after the post-election fallout at the beginning of 2008. Suppose if you have to move to Kenya, कहाँ पर जाना पसंद करोगे? सॉरी, दूसरी इस पर्टिकुलर सिटी में जाना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं. See that you have mapped your entire country in just one graph, and this will help you to take a better decision. This will help someone to manage the police force. This graph will help some businessmen to take a better decision for on investment. So there is no fixed use case for visual analytics now. Type of visualization: chart, map, network, time series, hierarchy, flow, matrix, infographic. तो ये कुछ टाइप्स है. चार्ट हो गया, मैप हो गया, नेटवर्क हो गया, टाइम सीरीज हो गया, हायरार्की हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, मैट्रिक्स फॉर्म हो गया या इन्फोग्राफिक हो गया. आपने अलग अलग जगहों पे देखोगे, मैंने एक स्लाइड के अंदर सबको एक जगह मैप किया सो दैट यू हैव अ बेटर आइडिया. सो प्रोसेस फ्लो मैप जानते हो आप लोग? फ्लो चार्ट सबको पता है. क्रिटिकल पाथ, दिस इज यूज्ड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि कौन सी एक्टिविटी कब खत्म हो रही है उसको मैप करने का तरीका. few other life cycles, डेवलपमेंट स्टेज, ये स्टेज, वो स्टेज, इस तरह के ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे. मैप ऑफ इन्फ्लुएंस, तो इन्फ्लुएंस किसी चीज का कहां से कहां तक जा सकता है. डिसीजन ट्री सब वाकिफ हो आप लोग. कॉज एंड इफेक्ट किसी ने सुना है ये? कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम थोड़ा गलत है ये, बट मैंने गलत ही रहने दिया. So cause and effect diagram, when you are learning this linear regression, तो आपको पता था कोरिलेशन और कॉजेशन में फर्क होता है. तो फिर एनालिसिस कैसे करोगे? So cause and effect relationship determine if your relationship does make any business sense or not. अदरवाइज मैं आपको एक्सेल के अंदर 2 कॉलम के अंदर कोई भी डेटा डाल के दे दूंगा, कोरिलेशन की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आ जाएगी. बट जरूरी नहीं है ना एक की वजह से दूसरे को कोई फर्क पड़ता भी हो. फॉर एग्जाम्पल अगर एक कॉलम में मैं डायमंड की सेल्स लिख देता हूँ, एक कॉलम में जलेबी की सेल्स, और कोरिलेशन की वैल्यू इत्तेफाक 0.86 आ जाएगी, तो क्या बोलते हो जलेबी से हीरे बिकते हैं? मैथमेटिक्स तो पॉसिबल है ना, कोरिलेशन है. So cause and effect relationship that determines whether this strength which I am seeing does make any business sense or not. So cause and effect diagram helps me to identify the causes for any effect. So जो ग्राफ में दिखा है, cause of car failure किस वजह से हो सकती है? Cold climate, lack of maintenance, out of fuel, ये वो. So I am able to collect all the causes for an effect. This is also known as fishbone diagram, Ishikawa diagram. Relevant visuals मतलब क्या हुआ इस बात का? छोटा सा ग्राफ बनाएंगे मैंने, जिसकी बात कर रहे हैं. सो मेरे को किसी को ये बताएंगे तो पैसे की बात हो रही है, सबको दिखा रहा है नजर आ रहा है. The bad and ugly is for the issue. कैसा है? ये ग्राफ बना था और किसी बड़ी मैगजीन में पब्लिश भी हुआ है. सो अ प्लेट्यू ऑफ हैप्पीनेस, और ये हर साल छपता है. कंट्रीज वेल्थ
के हिसाब से उनकी हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस को दिखाने का ग्राफ। तो सबसे ज्यादा खुश लोग आगे पुerto रिको, मैक्सिको, इंडिया तो यहाँ मिडिल में होगा, इंडिया पाकिस्तान तो बिल्कुल बॉर्डर कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे होना हो जेब में, plenty of happiness. But do you think this is a very good graph? Yes, no, maybe. So as part of the World Value Survey project, inhabitants of different countries and territories were asked how happy or satisfied they were. Below is a sampling of happiness ranking along with economic status. तो जीएनपी पर कैपिटा कितनी है, उनकी हैप्पीनेस का स्टेटस क्या है, उसको मैप करने की कोशिश की है। दो गलतियां इसमें बताओ क्या है सबसे बड़ी बात। दो कमी है इस ग्राफ में। वो अच्छा चलो सबसे बेसिक कर, क्या पैसे से हैप्पीनेस का कंपैरिजन ठीक है? डजंट मेक सेंस टू मी, मतलब मेरे को तो सेंस नहीं बनता। अगर ऐसा होता तो अमेरिकन सबसे ज्यादा रिच माने जाते हैं, बट मैं उनको बोलते साले सॉरी टंगले, मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग देयर लाइफ, सिगरेट भी ना क्रेडिट कार्ड पे पीते हैं, पता है वो, एक क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड खरीदते हैं, ये हालत है। आई वर्क इन दैट इंडस्ट्री, दैट्स व्हाई आई नो इट। मेरा जो परसेप्शन चेंज हो गया तो आई डोंट सी एनी बिजनेस केस हियर कि पर कैपिटा इनकम ज्यादा होने से हैप्पीनेस ज्यादा हो सकती है। अगर ऐसा होता ना, दिल्ली के लोग ज्यादा सुखी होते बजाय मेरे गांव के लोगों। अनहैप्पी, ये देखा भाई, अनहैप्पी प्लस जो आदित्य तुम्हारा क्वेश्चन है कि ये क्या है, तो ये हैप्पीनेस है, अनहैप्पीनेस का स्केल कैसे है, 1 to 5 कैसे हुआ, वो भी नहीं पता। इंडिया 0 पे नहीं पड़ता। So these are the bad part, bad and ugly. That's why I've mentioned spot the issue. Issues के बहुत सारे हैं, प्लस कितना cluttered ग्राफ है। चलो आज का लास्ट ग्राफ एंड वी आर डन। इस ग्राफ में इश्यू क्या है वो स्पॉट कर आइडेंटिफाई करके बताओ, बहुत बेसिक। Kanishka and Aditya, especially from you, I need this answer. कनिष्का है, चली गई। हाँ काउंट है, नंबर है, और क्या है, से समझ में नहीं आती। डिस्ट्रीब्यूशन 68 है। So Akash is right that plus doesn't give any limit. So only thing which is there, plus का मतलब क्या, कितना समझो। So your graph should not have this kind of fallacies or shortcomings. कुछ भी 100 plus 10,000 plus कुछ भी plus, what does that mean, कितना? So that was the issue, right? Okay, so we will summarize the bad and ugly tomorrow and we'll learn tableau. तो सर 2 घंटे tableau सीख जाएंगे, आधा घंटे के अंदर tableau सीख जाओगे अगर विजुअलाइजेशन समझ में आ गया तो।
ठीक है, क्वेश्चन कल और है खत्म। हाँ जी, शेयर किया था। हाँ जी, पूछो कैपिटल प्रोजेक्ट पे पूछो। ये सैस वाला कर लिया, किस किसने नहीं किया? हेलो 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 बोलो निष्कर्ष, किस निष्कर्ष सर पे पहुंचे? मैं ये पूछ रहा था सर, जो आपने प्रोजेक्ट दिया है उसका आर पे दिया हुआ है, फिर पाइथन से में कर बोलना। सकते हैं सर हम? जो प्रोजेक्ट आपने दिया था पहले वाला वो आर पे दिया हुआ है, हम हमें नवीन को कनिष्ठा को, तो पाइथन पे हाँ, कर सकते हैं? पाइथन पे कर सकते हैं उसको? तो आर तो सर कनिष्का, आउटडेटेड आउटडेटेड हो गया मुझे लगता है। भाई ऐसे मत बोला करो, लोगों की नौकरी चल रही है, आउटडेटेड हो गया। मतलब पाइथन ज्यादा बेटर है सर मेरे ख्याल से, मेरे को पाइथन पे करना है सर। पाइथन पे करना है, पाइथन पे कर लो। पर कनिष्का को आर पे करना है तो कनिष्का आप अलग से कर लेना आर पे, ठीक है? नहीं, कनिष्का ये बोली थी उस पे पाइथन पे करना है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कर लो उस पे। इसलिए मैं दोनों पे सबके साथ शेयर किए हुए हैं। अब सर कब तक सबमिट करना है? ये अगले से अगले हफ्ते प्रेजेंट करना है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। और सैस वाला? सैस वाला? सैस वाला कल बताना सबने। सैस वाला को करना है सबमिट? सैस वाला तो कल कल करना 12 है? तेरे में प्रेजेंट करना है, ठीक है? बारह तेरह में आपको अपने प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना है। सैस वाला जो बच गया वो कल बात सब स्टार्ट सैस वाले से कर लूंगा। सैस वाला भी सर आगे एक्सटेंड कर दो डेट उसकी, क्योंकि सर मेरे को जाना है घर पे सर, तो हो नहीं पाएगा सर। कल तक नहीं हो पाएगा? सर मेरी घर में शादी है, एक फंक्शन है, तो जाना पड़ेगा मुझे एक हफ्ते हाँ के तो लिए। वो एक घंटे का काम है वो। एक बार देखना पड़ेगा सर उसको सही से। वो देखने तो जरूरी है, शादी तो एक दिन की हाँ, होगी। नहीं उससे तैयारी भी तो करनी होती है। अरे एक घंटे निकालने कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, सबमिट कर देंगे अगले हफ्ते तक। ठीक है, चलो कल कल देखता हूँ सहसा मुझे सबका, और जो जिससे नहीं होगा मैं कल बता दूंगा उसका आंसर, ठीक है? चलो फिर प्रोजेक्ट आपको 12-13 में प्रेजेंट करना है, ठीक है? या फिर छुट्टी लो, कुछ भी करो। कोई क्वेश्चन और? नो सर, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। See you tomorrow. Bye bye. Take care. Stay safe and stay healthy.